टॉपिक इज चार्ज एंड मास रिलेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी बॉडी के चार्ज होने से उसके मास पे कुछ फर्क पड़ेगा? Yes, logically we can say there will be some effect or some changes in the mass of the body. Okay, for example, if we have this object 1 and we have this object 2, we are assuming that the electrons are getting transferred from object 1 to object 2. यहाँ पर suppose 3 electrons यहाँ पर आ गए, इसका initial mass अपन मानते हैं m0. Now when the electrons are getting transferred from object 1 to object 2, so you can say its mass increases by the mass of 3 electrons, and obviously electrons, it has some mass, so logically the mass of this body will be increased, that is the body which is negatively charged, because for negatively charged body these have excess of electrons, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पर उसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट from which the electrons are moving, or wherever there is deficiency of electrons, this object, its mass will be reduced. Why? Because the electrons, they are moving from this object 1 to object 2. So, and this body is positively charged. So, whenever we have a negatively charged body, its mass will be always increased, and for a positively charged body, its mass will be always reduced because it is losing electrons. Okay, so this is what the charge and mass relation is. Now the next topic we'll see, that is the different methods of charging. Now here we have two methods by which we can charge a body. The first method is charging by conduction. You know what is conduction? That is the movement of electrons or the transfer of electrons, or you can say whenever we have conductors, wherever the electrons transfers very easily, that is they are the conductors. And conduction here in this method there is contact between two bodies. मतलब यहाँ पर जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा तब हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज दी चार्जिंग बाय कंडक्शन, बिकॉज यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्जेस हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. ओके, नाउ द सेकंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. नाउ ये एग्जैक्टली फर्स्ट वाले का ऑपोजिट है. अगर फर्स्ट वाले में अपन ने देखा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा, देन इन दिस केस ऑफ इंडक्शन देयर विल नॉट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और बिना कांटेक्ट के वो दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी. दिस यू माइट हैव सीन इन योर अर्ली चाइल्डहुड कि क्या होता है कि कुछ पेजेस आप लेते हो, पेन को आप अपने बालों पर ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करते हो, फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्जेस क्रिएट होते हैं, एंड देन you just bring that pen to the near the paper, and then that papers will be attracted towards the pen. So what is that? You are not touching those paper with the pen, but still they are getting attracted. That is because of the charging by induction. अब charging by induction यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, how that body can be charged with the help of induction. So we can take in the form of a question, how you will charge a body. We can either say negatively or positively by the method of induction. मतलब इंडक्शन से आप किसी भी एक स्फेयर को, कंडक्टिंग स्फेयर को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कैसे करोगे. लेट अस टेक दिस a sphere and this is insulating base and this is conducting sphere. अब यहाँ पर ये जो स्फेयर है या कंडक्टिंग है, इसको अपन ने एक इंसुलेटिंग बेस पे रखा. इंसुलेटिंग बेस पे क्यों? बिकॉज चार्ज क्या होगा, अगर जैसे इसके ऊपर अपन चार्ज क्रिएट करेंगे एंड इफ दिस इज
in touch with the ground, then the complete charge whatever will be here on the surface that will be completely grounded. वो ground की तरफ चले जाएंगे और ये charge नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन को इसको एक insulating stand पर रखना पड़ता है. Okay, now here if you want to charge it negatively, इस sphere को अगर negatively charge करना है तो आपको एक दूसरी पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लेकर आनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि हमें इसको, जो स्फीयर है इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है, इसको नेगेटिवली चार्ज करना है. तो क्या करते हैं अपन, विल टेक अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड. अब जैसे अपन ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लेके आएंगे, एंड रिमेंबर इट, डू नॉट टच दिस रॉड with the conducting sphere से टच नहीं करना, बिकॉज द मेथड इज मेथड ऑफ इंडक्शन. क्या करेंगे, अब जैसे ही पॉजिटिव रॉड इसके पास लेके आएंगे, इसके ऊपर जो भी नेगेटिवली चार्ज होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, सभी इस तरफ आ जाएंगे. बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, दिस पॉजिटिव चार्ज will attract the negative charge, and all the opposite charges, that is positive charge, will be on the other side, you can say, because of the repulsion. Okay, now here the next step, what we will do, next step, we'll keep this rod as it is, and then here we have negatively charged. Now what we will do, we will earth this side, means on this side we will connect a rod with the earth, so that whatever, this is grounding, or you can say it is earthing. There are some difference between grounding and earthing, but for the time being assume it to be grounding or earthing. दोनों के अभी के लिए आप उसको सेम मानिए, बट दोनों में कुछ डिफरेंस होता है. ओके, सो whatever the charges, positive charges are here, वो सभी चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ग्राउंड हो जाएंगे. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, यहाँ पर ये जो ग्राउंडिंग है, इस ग्राउंडिंग वायर को वापस से क्या किया, हमने हटा दिया. हटाने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अभी भी उसके ऊपर रहेंगे. अब इसको अगर नेगेटिवली चार्ज करना है अपन को, तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसको यहां से हटा दो. तो जैसे ही उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अपन वहां से हटाएंगे, दिस नेगेटिव चार्जेस विल कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, क्योंकि हमेशा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर रहता है. तो यहाँ पर जो भी चार्ज एक साइड में था वो पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो हियर by the method of induction we can charge a sphere either positively or negatively. इसी को अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पर लेकर जानी पड़ेगी उसके पास. ओके, नाउ हियर वी हैव ओनली वन कंडक्टिंग स्फीयर. अगर अपने पास दो कंडक्टिंग स्फीयर होंगे तब क्या होगा, लेट अस टेक टू स्फीयर्स एंड वी हैव टू चार्ज बोथ द स्फीयर्स विथ ऑपोजिट चार्जेस. हाउ वी विल चार्ज टू स्फीयर्स with opposite charges by the method of induction. We will take now two spheres. Okay, here we have one sphere, here we have another sphere. First of all, what we will do, we will keep both of them in contact. We will keep them in contact. Now again, in the starting, we can take any चार्ज बॉडी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इसके पास में लेकर आएंगे. व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर द नेगेटिव चार्जेस आर हियर ऑन बोथ द बॉडीज, बिकॉज दिस बोथ आर टच्ड. टच होने की वजह से वहां पर जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, कंडक्शन यहाँ पर होगा और कंडक्शन के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे. नाउ ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ पर क्या होंगे, ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे. अब यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर इन कंडक्शन, मतलब वहां पर दोनों के बीच में कनेक्शन है. दैट्स व्हाई ऑल द नेगेटिव चार्ज ऑन द वन साइड एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर ऑन द अदर साइड. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप, व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू स्फीयर्स विदाउट रिमूविंग दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड. बिना पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रिमूव किए क्या करेंगे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे. गैप क्रिएट करने के बाद भी क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अभी भी वहीं पर है and this positive charge are on the other side. You can say because of the forces, यहाँ पर जो positive charges है इनके force की वजह से ये जो positive charge है वो अभी भी इससे दूर है, इसके पास नहीं आएगा. Now in this third step, what we will do, we will remove this positive charge rod. इसको यहाँ से अपन हटा देंगे तो क्या होगा, but these two spheres
we are not separating them right now. What will happen, as we are removing this positive charge rod, तो क्या होगा, ये negative charges सब यहाँ पर आ जाएंगे and positive charge will be on this side because of the attraction, because we know that positive and negative charges they attract each other, इसलिए दोनों पास में आ जाएंगे. अब दोनों क्या करेंगे, अपन दोनों को सेपरेटली चार्ज करना है, तो क्या करना है, दोनों को वहां से जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देंगे. अब जैसे ही अपन ने यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाया, द चार्ज दैट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर दी सरफेस, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज किसी भी बॉडी पर थोड़ा सा भी चार्ज रहेगा, दैट चार्ज विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी, वो पूरी बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा और डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाएगा. एंड दैट इज फॉर ओनली फॉर दी कंडक्टिंग मटेरियल्स. इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने चार्ज दिया है वो चार्ज उसी पर्टिकुलर बॉडी पे रहेगा, बिकॉज दैट मटेरियल इज नॉट अ कंडक्टर, दैट मटेरियल इज इंसुलेटर. ये सिर्फ कंडक्टर्स मटेरियल के लिए होगा. सो इन दिस वे वी कैन चार्ज टू स्फेयर्स बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन. ओके.